Very good morning, children. Today is the second day of our online class, and this is your science lesson. This is your science book, Learning Science, Cordova Publications. Okay, now let me introduce your book from inside. Here are the contents, and what you need to do to open chapter first, page number 5. First of all, you have to mention the date in the left corner and mention the reading in the right corner. You have to write here today's date only. Okay, let's start reading the chapter. Okay, what is the name of the chapter? Food and digestion. यानी कि फूड क्या होता है? खाना, एंड डाइजेशन यानी कि उसको हम डाइजेस्ट कैसे करते हैं. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो आफ्टर ईटिंग द फूड देयर आर सो मेनी प्रोसेस गोइंग इनसाइड आवर बॉडी टू डाइजेस्ट दैट फूड, एंड यू आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. ओके, here are some learning objectives. After reading the chapter you will be able to understand all these objectives. Now let's start reading the chapter. Have you ever thought, why do we feel hungry? Our body makes us feel hungry and tells us that it needs food. Why does it need food? Our body works all the time. It works when we play, eat, breathe or run. Some parts of our body keep working even when we are asleep, like our heart. The heart beats all the times to pump blood. For doing all these works, our body required a lot of energy. From where do we get this energy? Do you know? Yes, we get energy from the food we eat. Students, देखिए, have you ever thought, why do we feel hungry? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमें भूख क्यों लगती है? हम भूख क्यों महसूस करते हैं? Our body makes us feel hungry and tells us that it needs food. क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो हमें ऐसा फील कराती है और हमको समझाती है, या हमको बताती है कि हमको क्या है, फूड की ज़रूरत है. Why does it need food? कि हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Our body works all the time. हमारी बॉडी पूरा टाइम कंटिन्यू वर्क करती है. It works when we play. जब आप खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ब्रेथ कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, every time our body doing its work. Some part of our body keep working even when we are asleep. हमारी बॉडी के कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो तब भी काम करते रहते हैं जब हम सो जाते हैं, like our heart. You all know when you are sleeping, your heart is beating at the time also. The heart beat all the time to pump blood. यानी जो हमारा दिल है वो हर टाइम धड़कता रहता है, जिससे कि क्या हो, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पंपिंग कंटिन्यू चलती रहे. फॉर डूइंग ऑल दीज वर्क्स आवर बॉडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. अब इन सभी काम को करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? कहाँ से मिलती है हमें वो एनर्जी? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. यानी जो खाना हम खाते हैं हमें वो एनर्जी उससे मिलती है. वाई वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू स्टडी, प्ले एंड वर्क, ग्रो एंड कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी. ताकि पढ़ाई के लिए हमें एनर्जी मिल सके, हम खेल सकें, कुछ अपना वर्क कर सकें और कंटिन्यू ग्रो करते रहें, अपने आप को ऑलवेज फिट एंड हेल्दी रख सकें. इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आफ्टर ईटिंग food. Food gives us energy to play. Food gives us energy to study. Food gives us energy to work, and food helps us to grow. Okay, students. Now come to the second topic, which is nutrients. What is the meaning of nutrients? Food contains a variety of nutrients. यानी आप जो फूड खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. The substance that are needed by our body
फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ के लिए और ग्रो करने के लिए चाहिए उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। Nutrients present in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं वो, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। फर्स्टली वी विल रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। Sugar and starch are two types of carbohydrates. There are two types of carbohydrates. One is sugar and the other is starch. A carbohydrate-rich diet is needed for people doing heavy physical work like laborers, farmers, rickshaw pullers and sports persons. Okay? यानी कार्बोहाइड्रेट से रिच जो डाइट है वो किन लोगों को मोस्टली ज़रूरत पड़ती है? जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत मुश्किल फिजिकल वर्क करते हैं, लाइक लेबर्स होते हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, रिक्शा पुलर हैं यानी पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, फुल डे उनको फिजिकल वर्क करना है बॉडी के साथ, तो उनको चाहिए फूड दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। लेट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। Foods rich in carbohydrates are called energy giving food. Rice, wheat, potatoes, maize, banana and honey are rich in carbohydrates. There are some foods who are give us energy, and see the picture, there are all the foods who are rich in carbohydrates. Okay, bread, honey, potato, banana and maize also. Now read the another thing. Now read about another nutrient which is proteins. Proteins help us to grow. Growing children need a lot of proteins. Proteins also help us to build muscles and repair the damaged tissue of the body. Food rich in proteins are called bodybuilding foods. Egg, fish, meat and pulses are rich in proteins. Okay. Some foods are also help us to grow, like growing children. ये जैसे कि आप लोग हैं, आप सबको अभी बढ़ते रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है. यू ऑल नीड लॉट्स ऑफ प्रोटीन फॉर दैट, बिकॉज प्रोटीन हेल्प अस टू बिल्ड द मसल्स. मसल्स बनाने में हमें हेल्प करता है. अगर आपकी टिश्यू कोई डैमेज हो जाए, बॉडी में कहीं पर आपको चोट लग जाए, तो वो सब कुछ को रिपेयरिंग करने के लिए आपकी बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है. ओके और प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, बिकॉज दे हेल्प अस टू बिल्ड आवर बॉडी. एंड द नेम ऑफ दैट फूड्स आर एग्स, fish, meat, pulses and many other things. Okay students, now come to the another nutrients which is fat. Fat are the richest source of energy in our diet. They keep us warm, they give us more energy than carbohydrates. Food rich in fat are also called energy giving foods. Butter, ghee, cooking oils and nuts are rich in फैट्स. देखिए, फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. यानी अगर आप फैट्स लेते हैं तो वो क्या है आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा सोर्स एनर्जी का जिससे आपको मिलता है, और ये आपको वार्म रखते हैं. दे कीप अस वार्म. ये आपको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं. दे गिव अस मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स. जो अभी आपने ऊपर पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स की जो भी सोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती है सोर्सेज ऑफ फैट से. फैट फूड रिच इन फैट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, और इनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. फूड दैट आर रिच इन फैट्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. द एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स आर बटर, घी, कुकिंग ऑयल एंड नट्स. ओके, रिमेंबर आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट. Excess fat is harmful to us. It makes us obese and causes many diseases. यानी कि याद रखिए, जो हमारी बॉडी है उसको फैट
बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। अगर एक्सेस फैट हो जाए तो अगर नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा फैट हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इट मेक्स अस ओबीज, हमको मोटा कर सकता है और बहुत सारी आप डिसीज़ के अंडर आ सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर टिल हियर। Today's your homework is to read the chapter up to this point thoroughly. Thank you and have a nice day.